ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ خدا میں 3 شخصیت ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہی ہیں، زندہ اور سچا خدا۔ یہ تینوں علیحدہ ہیں لیکن اس کے باوجود تینوں ایک ہیں۔ آسمان پر لوسیفر نام کا ایک خوبصورت فرشتہ تھا جو خدا کے تخت کے سامنے ایک نہایت بلند مرتبے پر ہر وقت موجود رہتا تھا۔ پھر ایک دن تکبر کا گناہ اس کے دل میں آ گیا۔ وہ خدا قادر مطلق کی مانند ہونا چاہتا تھا۔ لوسیفر نے اپنے جنون میں بہت سے فرشتوں کو ورغلایا کہ وہ آسمان پر غلبہ پانے کی کوشش میں اس کے ساتھ شامل ہوں، لیکن لوسیفر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ صرف ایک مخلوق تھا۔ خدا نے لوسیفر اور تمام باغی فرشتوں کو آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ گرائے گئے فرشتے بدروہیں اور لوسیفر ابلیس بن گیا۔ وہ زمین کے ارد گرد بس گئے اور یہ زمین شیطان کی آماجگاہ بن گئی۔ زمین ایک دلچسپ ناٹک کا مرکز بن گئی۔ اب یہ وقت تھا کہ ایک مرکزی کردار کو سامنے لایا جائے۔ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنے صورت اور اپنی مانند بنائیں کہ وہ تمام زمین پر اختیار رکھے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، سو آدم جیتی جان ہوا۔ آدم کا مل تھا اور تحیات زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ابلیس غصے میں تھا۔ انسان نامی ایک نئی مخلوق اس کے علاقے پر قابض ہو چکی تھی۔ آدم عدن کے خوبصورت باغ میں رہتا تھا اور اس نے تمام جانوروں کے نام رکھے جو خدا نے بنائے تھے۔ آدم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا تھا اور خداوند نے اس کو تمام جاندار چیزوں پر اختیار بخشا، لیکن ابلیس آدم سے نفرت کرتا تھا اور اس کی موت چاہتا تھا۔ اور خدا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھایا کر، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اسے کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ اور خدا نے کہا یہ اچھا نہیں کہ آدم اکیلا رہے، میں اس کے لیے ایک ساتھی اس کی مانند بناؤں گا۔ بس خداوند نے آدم کی ایک پسلی سے حوا کو بنایا۔ باغ میں ان کی زندگی حقیقی بہشت تھی۔ جب حوا اکیلی تھی تب شیطان ایک خوبصورت سانپ کی شکل میں اس کے پاس آ گیا۔ اس نے حوا کے ساتھ جھوٹ بولا اور اسے ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ حوا نے ایک ہیبت ناک غلطی کی۔ اس نے خدا کے بجائے ابلیس کی فرما برداری کی۔ ممنوع پھل کھانے کی کھلے عام نافرمانی میں آدم اور حوا نے خدا کے آگے گناہ کیا اور وہ اپنی معصومیت کو کھو بیٹھے۔ وہ دونوں روحانی طور پر مر گئے اور گناہ ایک وائرس کی طرح ان کی نسلوں میں منتقل ہو گیا۔ نتیجہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ کے بغیر نہیں ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ گناہ کو اپنی حضوری میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ موت کی لعنت تمام بنی نوع انسان اور زمین پر تھی۔ خداوند نے زمین پر لعنت کی تاکہ وہ گناہ کے نتیجے میں کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے۔ اسی لیے خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ زمین کی
जिस में से वो लिया गया था खेती करे। इसके नतीजे में इब्लीस ने दुनिया की निजाम पर कब्जा कर लिया। इंसान का जमीन पर अब वो इख्तियार ना रहा और अब वो तारीकी के शहजादे और उसकी इब्लीसी लश्कर का गुलाम था। फिर भी खुदा ने अपनी मोहब्बत में एक नजात दहिंदा भेजने का वादा किया ताकि आदम के बाइस होने वाले नुकसान के तलाफी हो सके। आदम और हव्वा के बहुत सारे बच्चे थे। उनके दो बेटों का नाम काइन और हाबिल था। काइन जो कि पहलौटा था, उसने गजबनाक कहर में अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। इंसानी नस्ल का तंजल शुरू हो चुका था। जैसे तारीकी की कुव्वतें जमीन पर फैलती गईं, इंसानी नस्ल ज्यादातर तशद्दुद होती गई। ना खत्म होने वाली जंगे और कत्ल, जिना वल जब्र और अजियत के बेरहम फेल बढ़ गए। खुदावंद के रहम के बावजूद इंसान का दिल मुसलसल खुदा के खिलाफ होता गया, और क्योंकि उन्होंने खुदा का खौफ नहीं किया, इंसानी नस्ल बिगाड़ की निचली तरीन सतह तक पहुंची, हत्ता के शैतान के लिए बच्चों की कुर्बानी देने तक। ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था जो खुदावंद से मोहब्बत रखता हो। लेकिन एक शख्स था जो मर्द रास्तबाज था। उसका नाम इब्राहिम था। वो खुदा का दोस्त था। खुदावंद ने इब्राहिम को एक बेटा नवाजा जब उसकी बीवी 90 साल की थी। ये एक मौजज़ाना पैदाइश थी। उस नस्ल से खुदा के चुनिंदा लोग यानी बनी इसराइल आए। जैसे वक्त गुजरता गया, बनी इसराइल मिस्रियों के गुलाम बन गए और 400 साल तक सख्त गुलामी बर्दाश्त की। खुदा ने उनकी मदद की पुकार को सुना। वो उनसे मोहब्बत करता था और चाहता था कि वो उसकी खिदमत करें, तो उसने उनके पास एक नजात दहिंदा भेजा। उसका नाम मूसा था। वो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स यानी मिस्र के हुक्मरान फिरौन के पास खुदा का पैगाम लेकर पहुंचा। मूसा ने खुदा की तरफ से कहा, मेरे लोगों को जाने दे। तो खुदा ने मिस्र पर आफतें भेजी ताकि फिरौन को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सके। खुदा ने सारे पानी को खून में बदल दिया। मछलियां मर गईं और दरिया मुतफन हो गई। मिस्री लोग गुस्से में आ गए। उस सरजमी का पानी पीने के काबिल न रहा। लेकिन फिरौन डस से मस न हुआ। इसके बाद दूसरी आफतें आईं। जमीन मेंढकों से भर गई। उनके मवेशी मर गए और मिट्टी जुओं में बदल गई। मिस्री बहुत खौफजदा हो गए, लेकिन इसके बावजूद फिरौन का दिल सख्त होता गया। फिर खुदावंद ने मिस्रियों पर एक और आफत भेजी। तमाम इंसानों और जानवरों को फोड़े निकल आए। इसके बाद एक और बवा आई। ओले आग के साथ मिले और सारी जमीन पर गिरे और तमाम फसलों को तबाह कर डाला। मिस्र वीरान हो गया। आखिरी बड़ी आफत ने मिस्र की सरजमी में तमाम पहलौटों को मार डाला। मूसा ने बनी इसराइल को खबरदार किया कि वो खुदा की आखिरी लानत से महफूज रहने के लिए अपने दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाएं। खुदावंद ने मिस्र की अदालत की। आधी रात के वक्त वो हलाक करने वाले के साथ गुजरा और तमाम पहलौटों को मार डाला। लेकिन जब खुदावंद ने दरवाजों की चौखटों पर खून देखा, उसने हलाक करने वाले को अंदर न जाने दिया और वो आगे गुजर गया। उस रात मिस्र के हर घर में लाशें थीं। सारी कौम पागल हो चुकी थी।
यहाँ तक फिरौन का बेटा भी मर चुका था। सुबह होने से पहले ही फिरौन ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इज़राइल को लेकर निकल जाओ और खुदावंद की इबादत करो। तो खुदा के कादिर हाथ के साए तले वो चल दिए। और 430 बरस के बाद आखिर ये हुआ कि ठीक उसी दिन खुदावंद की सारी फौजें जमीन मिस्र से निकल गईं। ये खुदावंद की वो रात है जो चाहे खूब याद रखी जाए कि वो उन्हें मिस्र की जमीन से बाहर लाया। फिरौन ने उन्हें रोकने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन खुदा ने बहरे मुतलजिम से ये रास्ता बनाया और मूसा और बनी इज़राइल को जाने दिया। फिर खुदावंद ने समंदर का पानी वापस मिलाकर फिरौन की फौज को तबाह कर डाला। खुदावंद ने अपनी अजीम कुव्वत दिखाने के लिए लोगों के साथ नाकाबिले यकीन मौजज़ात किए। फिर खुदावंद ने अपने लोगों को गुनाहों से बचाने और जिंदगी में रहनुमाई के लिए शरीयत यानी 10 हुक्म दिए। लेकिन बनी इज़राइल ने बगावत की। बज़ाहिर वो खुदावंद की इबादत तो करते थे, लेकिन तहे दिल से नहीं। जल्द ही वो मौजज़ात और मुल्क मिस्र से अपनी रिहाई को भूल गए। इसके नतीजे में खुदा ने बादशाह बनाए ताकि वे उन पर हुक्मरानी करें, लेकिन बादशाहों ने भी खुदा की नजर में बुराई की और उनके बुतों की इबादत की जो उनके लिए फंदा हुए। उन्होंने तो अपने बेटों और बेटियों की शयातीन के लिए कुर्बानी किया और बेकसूरों का खून किया, यानी अपने बेटे और बेटियों का खून किया कि उन्होंने उनके कनान के बुतों के आगे ज़बह किया और जमीन खून से नापाक हुई। फिर खुदावंद ने लोगों को खबरदार करने के लिए अपने नबियों को भेजा कि वो गुनाहों से तौबा करें और खुदा की इबादत करें, लेकिन उन्होंने बार बार बगावत की। लोग नबियों से नफरत करते थे और बजाय उसके कि तौबा करें और खुदावंद की इबादत करें, उन्होंने खुदा के बंदों को बेरहमी से कत्ल किया। वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इज़राइल गुनाह करते गए। उसके नतीजे में खुदा ने उन्हें कब्जे में दे दिया ताकि वो गुलामी की अजियत सहें। आज जो हम अपने आप को देखते हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। सारी दुनिया झूठे, चोरों, खूनियों और जानियों से भरी पड़ी है। हम बदला लेना पसंद करते हैं। हम सब पर गुनाह की लानत है। सहीफे यही बयान करते हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आए देखें, जब एक गुनाहगार मरता है तो उसके साथ क्या होता है। इस आदमी का ख्याल था कि उसके पास सब कुछ है। बाइबल में लिखा है, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी और खुश रह। मगर खुदा ने उसे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे माठ लेंगे। और जैसा आदमियों के लिए एक बार मरना और बाद उसकी अदालत मुकर्रर हुई, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी सारी रास्तबाजियां गंदी धज्जी की सी, और हम सब पत्ते की तरह कुमलाते हैं, और हमारी बदकिरदारियां आंधी के मानिंद हमको उड़ा ले गईं।
उस जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना एक हौलनाक बात है। मौत के बाद उसकी रूह फौरन जहन्नुम में लाई जाती है ताकि खुदा की वहशतनाक अदालत का इंतजार करे। ये सब इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी के तोहफे यानी खुदा की मोहब्बत को ठुकरा दिया। वक्त नजदीक है। ये खुदा की अदालत का अजीम और हौलनाक दिन होगा, जब उन सबको जो अपने गुनाहों में मर गए बुलाया जाएगा ताकि वो अदालत के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने हाजिर हों। खुदा का कलाम फरमाता है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था, जिसके हुजूर से जमीन और आसमान भागे और उन्हें कहीं जगह न मिली, और समंदर ने उन मुर्दों को जो उसमें थे उछाल फेंका, और मौत व हादश ने उन मुर्दों को जो उनमें थीं हाजिर किया। फिर मैंने देखा कि मुर्दे क्या छोटे क्या बड़े खुदा के हुजूरी में खड़े हैं, और किताबें खोली गईं, और एक दूसरी किताब जो जिंदगी की है खोली गई, और मुर्दों की अदालत जिस तरह से उन किताबों में लिखा था उनके अमाल के मुताबिक की गई। हर एक बेहुदा बात जो कि लोग कहें, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। उसके बाद खुदा एक फरिश्ते को कहेगा कि वो किताब हयात खोलकर देखे कि आपका नाम इसमें है या नहीं। फरिश्ता देखेगा और कहेगा, ऐ खुदाबंद, ये नाम यहां मौजूद नहीं है। और खुदा फरमाएगा, ऐ मलाऊन, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चला जा जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और वो हमेशा के आजाब में जाएंगे, पर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। और जिसका जिक्र जिंदगी की किताब में ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उनके आजाब का धुआं अबद तक उठता रहता है, और उनको रात और दिन कभी आराम नहीं। लेकिन खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत में आपके लिए रास्ता तैयार किया ताकि आप उस वहशतनाक जगह से बच सकें। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब तौबा करें। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि आप उसके साथ बेहिश्त में रहें, और उसने आपके लिए जरिया बनाया कि आप वहां जाएं और जहन्नुम से बचें। और वो जरिया उस माऊद और नजात दहिंदे के वसीले से है। यहूदियों ने अपने मसीहा के तौर पर उसकी राह देखी और उसके लिए सदियों तक दुआ की ताकि वो आए और उन्हें बचाए। 760 साल कब्ल मसीह के यशाया नबी ने इजराइल की कौम से कहा, खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। इब्लीस ने पेशिन गोई को समझ लिया था। उस वक्त से इजराइल में हर कुंवारी पर गहरी नजर रखी जाती थी। इसके बहुत साल बाद मसीह की पैदाइश से पहले इजराइल फिर एक बार गैर मुल्क की ताकत की गुलामी में आ गया। ये वक्त अजीम रोमी सल्तनत का था। रोम ने यहूदियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती। इसी जहालत के दौर में खुदा का नजात का अजीम मंसूबा शुरू हुआ।
जब जिब्राइल, आसमान का एक अजीम मर्तबे वाला फरिश्ता, जमीन की हुदूद में दाखिल हुआ, बातिल ताकतों को झटका लगा और वो फौरन पहचान गए कि इलाही वक्त अब हरकत में आ चुका है। जिब्राइल नासरत के शहर में मरियम नामी एक कुंवारी को मिलने आया ताकि उसे वो पैगाम दे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। मरियम फरिश्ते के ज़हूर पर बेबस हो गई। उसने उससे कहा, और देख, तू हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा होगा और उसकी बादशाहत खत्म न होगी। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये कैसे होगा जिस हाल में मैं कोई मर्द को नहीं जानती? रूहे खुदूस तुझ पर उतरेगी और खुदा ताला का साया तुझ पर होगा। उस सबब से वो खुदूस भी जो पैदा होगा खुदा का बेटा कहलाएगा। और मरियम फरिश्ते पर ईमान ले आई और कहने लगी, मुझ पर तेरे कहने के मुवाफिक हो। यीशु आसमान का जलाल छोड़ता है और अपना रसालती मंसूबा शुरू करता है। रूहुल खुदूस कुंवारी मरियम पर साया डालता है और वो हामिला होती है। उसके जिस्म में कायनात का खालिक एक बच्चे की शक्ल ले रहा है। बाद में मरियम को एलीशिबा से, जो उसकी बड़ी चचेरी बहन थी और 6 महीने से हामिला थी, मिलने की बशारत हुई। जब एलीशिबा ने मरियम का सलाम सुना, लड़का उसके पेट में उछल पड़ा और एलीशिबा रूहे खुदूस से भर गई। एलीशिबा के बच्चे का नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। एलीशिबा ने जोर से पुकार कर कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अब उसका बच्चा होने वाला था और यहूदी शरीयत के मुताबिक किसी भी कुंवारी की शादी से पहले हामला होना मौत का तकाजा करता था। यह मरियम के लिए बहुत बड़ा मसला था। उस मनाजर के पीछे शैतान मरियम को संगसार करवाना चाहता था ताकि बच्चा मर जाए, लेकिन यूसुफ मरियम से मोहब्बत करता था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वो उसकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद था और उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। खुदावंद के एक फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी जोरू मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल खुदूस से है और वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। फिर मरियम और यूसुफ की नासरत के शहर में शादी हो गई। रोम में शैतान ने अगुस्तस को सारी दुनिया के लोगों का नाम दर्ज करवाने के लिए उकसाया और शैतान ने यह बुराई के तहत किया, लेकिन ऐसा करके उसने यूसुफ और मरियम को जबरदस्ती बैतलहम भेजकर बाइबल की पेशनगोई पूरी होने में मदद की, जहां बाइबल बताती है कि यीशु पैदा होगा। बैतलहम यूसुफ की भी पैदाइश की जगह थी और यहीं पर उसे अपना भी नाम लिखवाना था। मरियम बच्चा जनने के करीब थी। शैतान उम्मीद कर रहा था कि इस लंबे सफर पर एक हादसा होगा, लेकिन हर चीज खुदा के अख्तियार में थी और अपना पहलौटा बेटा जनी। उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रखा, क्योंकि उनको सराय में जगह न मिली थी। उस रात मैदान में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता जाहिर हुआ और कहने लगा, मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूँ जो सब लोगों के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला पैदा हुआ, वो मसीह खुदावंद है। और यक बार की उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करते और ये कहते जाहिर हुए, एक बहुत ही पस्त हाल अस्तबल में कायनात के खालिक ने जन्म लिया। बाइबल में लिखा है वो जहान में था और जहान उसी से मौजूद हुआ और जहान ने उसे ना जाना। बाइबल यीशु को इस तरह बयान करती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी से मौजूद हुई और कोई चीज मौजूदा न थी जो बगैर उसके हुई। और जब 8 दिन पूरे हुए कि लड़के का खतना हो, उसका नाम यीशु रखा गया, जो उसके पेट में पड़ने से पहले फरिश्ते ने रखा था। यहूदी शरीयत के मुताबिक मरियम ने ईमानदारी के साथ 2 कबूतर के बच्चे नजर किए। हालांकि खुदा ने मरियम को इस आला रुतबे के लिए चुना था, लेकिन मरियम जानती थी कि वो गुनहगार है और ये समझती थी कि उसका बेटा यीशु उसका निजात दहिंदा होगा। हैकल में शमौन नाम का एक शख्स था। बाइबल फरमाती है उसको रूह खुदूस ने खबर दी थी कि जब तक खुदावंद के मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। उसने बच्चे यीशु को गोद में लिया और कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देखी। खुदावंद यीशु की पैदाइश पर आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ और मशरिक से मजूसी अपने साथ तोहफे लिए हुए सितारे के पीछे चल दिए। उन्हें यरूशलेम तक पहुंचने में 2 साल लगे होंगे। मजूसी हेरोदेस बादशाह के पास आए और पूछा, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ तो वो कहाँ है कि हमने पूरब में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने को आए हैं। जब हेरोदेस बादशाह ये सुना, तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहां पैदा होगा। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। वो बादशाह से ये सुन के रवाना हुए और देखो, वो सितारा जो उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे चलता रहा और उस जगह के ऊपर जहां वो लड़का था जाके ठहरा। और उस घर में पहुंचकर उस लड़के को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे झुककर सजदा किया और अपनी झोलियां खोल के सोना, लोबान और मुर उसे नजर गुजराना और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदोस के पास न जाए, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को फिरे। जब वो रवाना हुए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, उस लड़के और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहां रह जब तक मैं तुझे खबर न दूं, क्योंकि हेरोदेस इस लड़के को ढूंढेगा कि मार डाले। तब वो उठ के रात ही को लड़के और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हुआ।
جب ہیرودیس نے دیکھا کہ اس نے مجوسیوں سے فریب کھایا تھا تو نہایت غصہ ہوا اور لوگوں کو بیت لہم بھیج کر اور اس کی ساری سرحدوں کے سب لڑکوں کو جو 2 سال کے اور اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے موافق کہ اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی قتل کروا دیا۔ تب وہ جو یرمیا نبی نے کہا تھا پورا ہوا کہ راما میں ایک آواز سننے میں آئی ہے، نالے اور رانے اور بڑے ماتم کی راکھیل اپنے لڑکوں پر روتی اور تسلی نہیں چاہتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سی معصوم جانوں کا قتل ہوا تھا، خدا ان کی چھوٹی قیمتی روحوں کو آسمان پر لے گیا۔ بادشاہ ہیرودیس کی موت کے بعد خاندان واپس ناصرت میں چلا گیا اور لڑکا بڑھتا اور حکمت سے بھر کے روح میں قوت پاتا رہا اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر سال عید فصح میں یروشلم کو جاتے تھے، اور جب وہ 12 سال کا ہوا اور عید کے دستور پر یروشلم کو گئے تھے، عید فصح کے دوران یہ بات ییشو کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ خدا کا برہ ہوتے ہوئے ایک دن دنیا کے خاطر وہ قربان ہوگا۔ یہ گزاری ہوئی سب سے عظیم ترین زندگی تھی، اور ایسا ہوا کہ انہوں نے 3 روز پیچھے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ بیٹھے ہوئے پایا، ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا۔ شیطان اپنے دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ استاد اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ بچہ ییشو شریعت کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا تھا؟ یہ آسان تھا۔ 1500 سال پہلے اپنے جلال میں اس نے کوہ سینا پر خود موسیٰ کو شریعت دی تھی۔ جب یوسف اور اس کی ماں نے اسے پا لیا تب وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، کس لیے تو نے ہم سے ایسا کیا؟ اس نے ان سے کہا، کیوں تم مجھے ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم نے نہ جانا کہ مجھے اپنے باپ کے یہاں رہنا ضروری ہے؟ اور ییشو حکمت اور خدا کے اور انسان کے نزدیک مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ 18 سال بعد یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نبی ہے؟ یوحنا نے جواب دیا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، پر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ وہی ہے جو میرے پیچھے آنے والا تھا، جو مجھ سے مقدم تھا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ عیسیٰ جب 30 سال کا تھا تب بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا۔ یوحنا نے عیسیٰ کو اپنے پاس آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو اس جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور ییشو بپتسمہ پا کے وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو کہ آسمان سے ایک آواز یہ کہتی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس وقت روح ییشو کو جنگل میں لے گیا، جہاں وہ جنگلی جانوروں کے بیچ تھا، تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن تک اس نے کچھ نہ کھایا۔ ییشو سے گناہ کروانے کی شیطان کی اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ آخرکار ہار گیا، کیونکہ ییشو قادر مطلق ہے اور اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ جب آزمائش ختم ہو گئی
तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। उसी वक्त से यीशु ने मनादी करनी और ये कहना शुरू किया, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। और यीशु ने खुदा के दिल की बात बताई, ये कहकर, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। उनकी मनादी ने लोगों को हैरान कर दिया और वो बोले, हरगिज़ किसी शख्स ने इस आदमी की मानंद कलाम नहीं किया। बहुत से मजहबी रहनुमा जो हैकल का इंतजाम संभालते थे बड़े रियायकार थे, जिनके दिल में कोई रहम नहीं था और जो खुदा की शरीयत को मनसूख कर चुके थे, वो बहुत जल्द खुदावंद यीशु के दुश्मन बन गए। खुदा की हैकल तिजारत का मरकज बन चुका था, जहां गरीबों और मासूम लोगों के साथ धोखा किया जाता था। जब यीशु ने ये देखा, उसने गुस्से में आकर एक कोड़ा बनाया और मजहबी तौर पर बिगड़े हुओं को बाहर निकाल दिया और पैसों का कारोबार करने वालों को बाहर निकाल दिया और उनकी मेजें उलट दी और उनसे कहा, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु बड़े बड़े मौजज़े करते थे। बाइबल कहती है, और देखो, एक कोढ़ी ने आके उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तब यीशु ने हाथ बढ़ा के उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। खुदावंद ने अपने पीछे आने वाले हुजूम पर तरस खाकर मौजज़ाना तरीके से 5000 आदमियों और उनके खानदानों को पेट भर खिलाया, सिर्फ 2 मछलियों और 5 रोटियों से। और यीशु निकलकर एक बड़ी भीड़ देखा और उन पर उसे रहम आया और जो उनमें बीमार थे उन्हें ठीक किया। एक रात शागिर्द लोग यीशु को पानी पर चलता हुआ देखकर घबरा गए। यीशु ने उन्हें कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। सारी कायनात ने यीशु का हुक्म माना। यीशु ने फरमाया, कयामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाए, अगर वो मर भी गया हो तो भी जिएगा। अपनी कुदरत की इजहार के लिए वो लाजरस की कब्र पर आया जो 4 दिन से मुर्दा था और ये कहकर बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लाजरस, बाहर निकल आ। तब वो जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और ये खबर हर तरफ फैल गई कि यीशु मुर्दों तक को जिंदा कर देता है। जब शाम हुई, उसके पास बहुतों को जिन पर देव चढ़ते थे लाए और उसने उन रूहों को कलाम ही से दूर किया और सबको जो बीमार थे चंगा किया। आम लोग यीशु को तमजीद करते थे। उनकी सबसे ज्यादा मुखालिफत मजहबी रहनुमाओं की तरफ से हुई। वो ये कहकर उन पर इल्जाम लगाते थे कि उसकी कुदरत शैतान की तरफ से है। लेकिन यीशु ने कहा, तुम अपने बाप शैतान से हो और चाहते हो कि अपने बाप की ख्वाहिश के मुआफिक काम करो। वो तो शुरू से ही कातिल था और सच्चाई पर साबित न रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ कहता है तो अपने ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। पर तुम इस सबब से कि मैं सच कहता हूं मुझ पर ईमान नहीं लाते।
बस पर्दा शैतान गहरे तौर पर शामिल है, पर आप ये जान लें कि इससे पहले कि शैतान किसी के खिलाफ कुछ कदम उठाए, उसे पहले आसमान के खुदा से इजाजत लेनी पड़ती है। और इस तरह बाइबल की नबूवत पूरी होने के लिए खुदा ने शैतान को मसीह पर हमला करने की इजाजत दी। बाद में खुदावंद के दुश्मन मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें फंसाने की कोशिश की, ये पूछकर क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। यीशु ने उनकी शरारत समझ के कहा, ऐ रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। और एक दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। फिर उसने कहा, बस जो चीजें कैसर की हैं कैसर को दो, और जो खुदा की हैं खुदा को दो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। यीशु ने उनकी किल्ली खोल दी जब उन्होंने कहा, ऐ रियाकारों, फकीहों और फरिसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फेरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो बाहर से बहुत अच्छी मालूम होती हैं, पर भीतर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नापाकी से भरी हैं। ऐ सांपों और सांप के बच्चों, तुम जहन्नुम के अजाब से क्यों कर भागोगे? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को जहां में इसलिए नहीं भेजा कि जहां पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि जहान उसके सबब से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उसके लिए सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उसके वास्ते सजा का हुक्म हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। यीशु ने हुजूम से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो मेरा कलाम सुनता है और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि मौत से निकलकर वो जिंदगी में दाखिल होता है। जिंदगी उसमें थी और वो जिंदगी इंसान का नूर थी। खुदावंद यीशु मसीह ने मजहबी ठेकेदारों को बड़ा धक्का दिया जब उन्होंने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई बगैर मेरे वसीले बाप के पास नहीं आ सकता। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को एलानिया बता दिया कि आसमान पर जाने का सिर्फ यीशु ही रास्ता है। इन अल्फाजों ने मजहबी दीनदारों को हिलाकर रख दिया। उन अल्फाज की बदौलत लोग उनसे नफरत करते थे और आज भी उन्हीं अल्फाज की बदौलत लोग उनसे नफरत करते हैं। मसीह की खिदमत का जमीनी खात्मा होने जा रहा था। दानियल नबी ने पेशन गोई में वो ठीक ठीक दिन बताया था जब मसीह यरूशलेम में होशाना की गूंज के साथ दाखिल होगा। लेकिन यीशु जानते थे एक हफ्ते में ही वो शोर मचा रहे होंगे, उसे सलीब दो। शैतान अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के फंदे में फंसाने के लिए मजहबी रहनुमाओं को बहकाने में मसरूफ था। आखिरकार वो यीशु ही थे जिन्होंने शैतान और उसके फरिश्तों को आसमान से बाहर फेंक दिया था। शागिर्द अभी तक यीशु के यरूशलेम में फातहाना दाखिले पर पुरजोश थे और यकीन रखते थे कि वो जल्द ही बादशाह बन जाएंगे। लेकिन ईद फसह के मौके पर यीशु ने वजाहत की कि वो अपना खून बहाएंगे और मर जाएंगे। यीशु ने कुछ रोटी और मैं ली, एक इलामत के तौर पर जो कुछ वाकया होने जा रहा था। उन्होंने एक रोटी तोड़ी जो उनके बदन को जाहिर करती थी, जो कि सलीब पर तोड़ा जाएगा। तब उन्होंने मैं का प्याला भी दिया जो उस खून को जाहिर करता था जो वो बहाएंगे, और ये उसकी यादगारी के तौर पर
उनके दोबारा आने तक किया जाएगा। फसा के बाद शैतान ने अपना काम शुरू किया। उसने एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया और उसमें समा गया, और इस बात ने उसको तारीख का सबसे बड़ा गुनहगार ठहराया। यहूदा सरदार काहीन के पास गया ताकि यीशु को पकड़वाए। यहूदा ने यीशु को सरदार काहीनों के हाथ चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। तब शैतान ये यकीन करते हुए कि उसके फतेह की घड़ी आ पहुंची, अपनी बातिल कुव्वतों को यरूशलेम में बुलाया ताकि यीशु का कत्ल कर दे, जो दुनिया का नूर था। उस रात यीशु अपने शागिर्दों को गतसमनी के बाग में ले गए और उनसे अलहदा होकर दुआ करने लगे। किताब मुकद्दस कहती है, और वो जाकनी में फंस के बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगता था, और उसका पसीना लहू की बूंद की मानी जमीन पर गिरता था। यीशु, जिसने गुनाह न किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात पाई गई, सारे आलम के गुनाह अपने ऊपर लेने वाला था। यीशु ने दुआ मांगी, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे गुजर जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। देखो, वो घड़ी आ पहुंची कि इब्ने आदम गुनहगार के हाथों से हवाले किया जाता है। वो ये कहता ही था कि फील फोर उन 12 में से एक यहूदा नामी उसके साथ सरदार काहीनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लेके आ पहुंचा। यहूदा, उसके पकड़वाने वाले, ने उन्हें यह कह के बता दिया था कि जिसे मैं चूमूंगा वही है, उसे पकड़ लेना। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू इब्ने आदम को होसे से पकड़वाता है? तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहीन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उसके कान को छूकर उसको चंगा किया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में कर, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से मारे जाएंगे। यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि वो अपने बाप से दुआ कर सकता है, और फरिश्तों के 12 तमन से ज्यादा वो मेरे लिए अभी मौजूद करेगा। ये 72,000 से भी ज्यादा फरिश्ते होंगे। लेकिन यीशु फरिश्तों को अपने दफाक की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसे नबूवत को पूरा करने के लिए सलीब पर चढ़ना था। और वो गिरफ्तार हुआ। शैतान बहुत खुश था। उसका चोटी का दुश्मन बेयार वो मददगार था, और शैतान का बदला लेने का वक्त आ गया था। तो जिन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे कैफा नाम सरदार काहीन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा थे, तब सरदार काहीन और बुजुर्ग और सारी मजलिस यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि यीशु को मार डालें। फिर सरदार काहीन ने उनसे पूछा, क्या तू मसीह उस मुबारक का बेटा है? यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूं। तब सरदार काहीन ने अपने कपड़े फाड़कर कहा कि ये कुफ्र कह चुका है, अब हमें और गवाह की क्या जरूरत है? तुमने आप उसका कुफ्र सुना, अब तुम्हारी क्या सलाह? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसा मारा, और दूसरों ने उसे तमाचा मारा। फिर उसे बांधकर
बाहर ले गए और पेंतिवस पिलातुस हाकिम के हवाले किया। उस वक्त सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर फसियाद कर रहे थे, पर वो कुछ भी जवाब ना देता था। इस बात ने एक और नबूवत को पूरा किया। वो तो निहायत सताया गया और गमज़दा हुआ, तो भी उसने मुंह ना खोला। वो जैसे बर्रा ज़बा करने के लिए ले जाते हैं और जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के आगे बेजुबान है, उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू सच कहता है। तब पिलातुस ने सरदार काहिन और लोगों से कहा कि मैं इस शख्स का कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदी बहुत खफा हो गए और उन्होंने सूरत हाल को तकरीबन बगावत में बदल दिया और पिलातुस पर दबाव डाला। ये यहूदियों का खास ईद का दिन था और पिलातुस ये जानता था कि उस मौके पर एक कैदी को छोड़ने का रिवाज था। पिलातुस यीशु को छोड़ना चाहता था और तब सिपाही एक खूनी बरअब्बा को सामने ले आए। उनको यीशु और बरअब्बा में से एक को चुनना था। पिलातुस ने भीड़ से दरियाफ्त किया, किसे छोड़ना चाहिए, मसीहा या बरअब्बा? वो हैरत ज़दा हो गया जब उन सबों ने चिल्लाकर कहा, इसको नहीं बल्कि बरअब्बा, बरअब्बा को छोड़ दो। पिलातुस ने पूछा कि इसके साथ, जिसे यहूदियों का बादशाह कहा जाता है, कैसा सलूक किया जाए? भीड़ चिल्लाई, उसे सलीब दो। पिलातुस ने यीशु में ऐसा कोई जुर्म न पाया जिसकी सजा मौत हो। उसने सोचा कि अगर वो उसे कोड़े लगवा दे तो उससे लोग खुश हो जाएंगे और वो यीशु को छोड़ सकेगा। फिर सिपाही यीशु को कोड़े मारने के लिए ले गए। खुदावंद ने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा था। आसमान पर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल खुदूस जमीन की बुनियाद से पहले मसलूबियत के हर मकाम का मंसूबा बना चुके थे। यीशु के पास उन्हें रोकने की कुव्वत थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से उनको यह करने की इजाजत दी। चमड़े के कोड़े के साथ आमतौर पर लोहे के टुकड़े, शीशे की गोलियां और तेज हड्डियों के टुकड़े बंधे होते हैं। न सिर्फ उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए, बल्कि उसके पैरों पर भी कोड़े बरसाए गए। जैसे कोड़ों में मौजूद तेज हड्डियां और लोहे के टुकड़े गोश्त को फाड़ देते हैं, अट्ठों में से गोश्त की फांकें निकल आती थीं और उनमें से खून की धारें बहाने के लिए निशाना बनाया जाता था। बहुत से मुजरिम एक मार से ही जान की बाजी हार जाते थे, पर वो हमारे गुनाहों के सबब घायल किया गया और हमारी बदकारियों के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हमको शिफा मिले। याद करो जब खुदा ने गुनाह की वजह से जमीन पर कांटों की लानत की, सिपाहियों ने जहरीले कांटों का ताज बनाया और उसके सिर पर जोर से रखा, जिससे उसे शदीद तकलीफ और सूजन हुई और खून बह निकला। यीशु हमारे लिए गुनाह का कफ्फारा बनने जा रहे थे। कांटों का ताज गुनाह की तकलीफ की इलामत है और उन्होंने उसके कपड़ों को फाड़ा और उसे एक बैंगनी चौगा पहनाया और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार के कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम।
हर सिपाही ने बेरहमी से भूसे से उसके मुंह पर मारा और सरकंडे से उसके सिर पर मारा। उन्होंने खुदा के मेमने पर थूका। इस पाक कलाम को पूरा करते हुए मैं अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाता। वो आदमियों में बेनिहायत जलील हकीर था। वो मर्द गमनाक और रंज का आशना हुआ। यीशु को वापस गवर्नर के पास लाया गया, जिसने ये शेखी मारी कि सिर्फ इसके पास यीशु को सलीब देने या छोड़ देने का इख्तियार है। लेकिन खुदावंद ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से दिया ना जाता तो मुझ पर तेरा कुछ अख्तियार ना होता। यीशु ने पहले ही फरमाया था, मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं उसे फिर लूं। कोई शख्स उसे मुझसे नहीं लेता, पर मैं उसे आपसे देता हूं। और तब से पिलातुस ने यीशु को आजाद करने का मंसूबा ढूंढा, लेकिन यहूदियों ने यह कहा, अगर तू इस मर्द को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने तय से बादशाह ठहरता है वो कैसर के मुखालिफ होके बोलता है। शैतान ने लोगों के जज्बात को मुकम्मल तौर पर यीशु के खिलाफ भड़का दिया। शैतान का यकीन था कि उसके पास मुकम्मल काबू है, लेकिन ऐसा नहीं था। अपनी लाइल्मी में शैतान खुदा के हाथों में कठपुतली बनकर रह गया था। वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर था कि इसके अमाल बाइबल की नबूवतों को पूरा कर रहे हैं। आखिरी बार पिलातुस ने कहा, देखो अपना बादशाह। सरदार काहिन ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। पर भीड़ ने चिल्लाकर कहा, उसको सलीब दो, सलीब दो। जब पिलातुस ने देखा कि सूरत हाल इसके काबू से बाहर हो चुकी है, तो उसने पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, आगे तुम जानो। तब सब लोगों ने जवाब में कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। खुदा ने इन अल्फाज को याद रखा और आज तक उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और पिलातुस ने यीशु को मसलूब करने के लिए उनके हवाले किया और वो उसे ले गए। यीशु का गोश्त चिथड़ों के मानिंद लटक रहा था जब उन्हें 100 पाउंड की सलीब उठाने का और 650 गज तक चलने का हुक्म मिला, जहां उन्हें सलीब देने वाले थे, यानी गुलगत्ता। खुरदरी लकड़ी उनकी जख्मी कमर में चुभ चुभ कर बाहर निकल रही थी और अब तक उनके जिस्म में पानी की कमी हो चुकी थी। वो मौजूजा था कि वो अभी तक जिंदा थे। एक और पेशन गोई पूरी हुई। यकीनन उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों का बोझ अपने ऊपर चढ़ाया। पर हमने ये हाल समझा कि वो खुदा का मारा, कूटा और सताया गया। एक और पेशन गोई पूरी हुई। मैं अपनी पीठ मारने वालों को देता हूं और अपने गाल उनको जो बाल को नोचते। मैं अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाता। खुदा ने अपनी मोहब्बत और अपने रहम में अपनी खल्क की रुसवाइयां, झूठ और नफरत उठाने के लिए आसमान को छोड़ दिया और उन्हीं के गुनाहों के सबब से मरा। फरिश्ते खौफ से देखते हैं। अब तक उनके चेहरे को बुरी तरह पीटा गया था और ये कांटे उनके मुंह पर सूजन और दर्दनाक तकलीफ का सबब बन चुके थे। उसके चेहरे का सारा मांस सूजा था और वो मजीद इंसान नजर नहीं आ रहा था।
कई सौ साल पहले ये वाकया हुआ था। ज़ुबूर नवीश ने ये बात यीशु के बारे में बताई थी। क्योंकि कुत्ते मुझको घेरते हैं, शरीरों की ग्रोह मेरा अहाता करती है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव को छेदते। यीशु ने खुद फरमाया था, और मैं जो हूं, अगर जमीन से ऊपर उठाया जाऊं तो सबको अपने पास खींच लूंगा। कोई शख्स उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे। और उन्होंने उसके साथ दो चोरों को, एक को दाहिने हाथ और दूसरे को बाएं हाथ, सलीब पर चढ़ाया। तब वो नबूवत इस मजमून का कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। सिपाहियों ने उसके कपड़े पर कुर्रा डाला। बेचारे यीशु को मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ा जब उनको दुनिया के सामने नंगा किया गया। और यीशु ने अपने सताने वालों को देखकर दुआ की, ऐ बाप, उनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। राह में चलने वालों ने भी कहा, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतरा। इस तरह काहिनों ने भी आपस में फकीहों के साथ ठट्टे करते हुए कहा, उसने औरों को बचाया और अभी अपने आप को भी नहीं बचाता। बनी इज़राइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतरा ताकि हम देखें और तुझ पर ईमान लाएं। मसलूब की दहशत को एक माहिर तब ने बयान किया, जिसने कुछ इस तरह से कहा, यह किसी इंसान के लिए सबसे कुर्बनाक मौत थी। उन्हें सांस लेने के लिए अपने आप में हिम्मत पैदा करनी पड़ी। बाजों की दरमियानी नसों में कीलों की शदीद तकलीफ उनके बाजुओं, सर और कमर में दर्द का शदीद तूफान बर्पा करती है। पांव की दरमियानी हड्डियों के नसों के दरमियान से गुजरने वाले कीले उनके जिस्म को अकड़ा देती थी। फिर टांगों के पट्टे अकड़ जाते थे और वो उसके जिस्म को नीचे की तरफ खींचते हैं, जो उसे बार बार सलीब के साथ मारते हैं। सांस अंदर जाती है, लेकिन उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकती जब तक उनके फेफड़ों और खून के नलियों के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मुतहरिक होकर रगों को नरम ना कर देती। थकावट, सदमा, पानी की कमी और फालिज मसलूब को खत्म कर देता है। दिल बमुश्किल गाढ़े खून को पंप करने के काबिल है, क्योंकि हर सेकंड में उनके लाखों बेज मुर्दा हो जाते हैं। हमारे गुनाहों के बदले यीशु मसीह सूली पर चढ़े। जिस तरह बहुतेरे तुझे देखकर दंग हो गए कि उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और बहकर बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गई। ये तवारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस दिन की तरह पूरी तारीख में कोई दिन न था, क्योंकि खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस खौफनाक दिन पर जो खून यीशु ने सूली पर बहाया, वो इंसानी खून न था, वो खुदा का बेशकीमती खून था। और सिर्फ यही खून हमारे गुनाहों को पाक साफ कर सकता है। यीशु ने ये सब आपके लिए क्यों किया? क्योंकि वो आपसे
मोहब्बत करते हैं। आसमान बहुत तारीक हो गया था, जैसे कि खुदा बाप गुनाह नहीं देख सकता। यीशु ने तमाम इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लिए, जिसमें हर बुरे अमल या ख्याल शामिल थे, और उन्होंने जालिम सलीब पर उसकी भारी कीमत अदा की। यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोला, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखो, खुदा का बर्रा जो इस जहां के गुनाह उठा ले जाता है। अपने मरने से पहले खुदावंद चिल्ला उठा, पूरा हुआ। हमें बचाने का तमाम जरूरी काम मुकम्मल हो गया था। और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार के कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर दम छोड़ दिया। सलीब की उस कुर्बानी को फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा। ये तय करने के आप मर चुके हैं, एक सिपाही ने खुदावंद की पसली को भाले से छेदा और उस जगह से खून और पानी निकला। और उस सूबेदार ने जो उसके सामने खड़ा था, उसे यूं चिल्लाते और दम छोड़ते देखकर कहा कि यह शख्स सचमुच खुदा का बेटा था। उनकी वफात के बाद उनके जिस्म को सलीब पर से उतारा गया और उसे उम्दा कतानी कपड़े में लपेटा गया और किसी दूसरे की कब्र में रखा गया। यरूशलेम में बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी। खुदावंद यीशु मसीह मर चुके थे। यहूदा अपने आप को फांसी दे चुका था और शागिर्द खौफ के मारे छिपे हुए थे। हर तरफ मायूसी थी। शागिर्द ना यकीनी में भूल चुके थे कि यीशु ने कहा था वो दोबारा जिंदा होंगे। फिर ये वाकया हुआ, आलम तारीख का सबसे बड़ा वाकया। दफन के 3 दिनों बाद खुदा का जलाल जाहिर हुआ और मसलूब मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने दुनिया को अबदी जिंदगी की उम्मीद दिलाई। खुदावंद मसीह ने गुनाह, मौत और जहन्नम पर एक बड़ी फतेह हासिल करके ये ऐलान किया, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर। खुदावंद यूं फरमाता है, जो है और था और आने वाला है। कादिर मुत्तलक हूं और जिंदा हूं, और मैं मरा था और देख मैं अबद तक जिंदा हूं। आमीन। और आलिमुल गैब और मौत की कुंजियां मेरे पास हैं। सुबह सवेरे हफ्ते के पहले दिन औरतें यीशु की लाश को खुशबूदार करने के लिए इत्र और मुर लेकर आईं। एक फरिश्ते ने उनका इस्तकबाल किया और उसने कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो सलीब पर मरा उसको ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वो जी उठा है। जल्द जाके उसके शागिर्दों से कहो। शैतान की बादशाहत पाश पाश हो गई और पागलपन में शैतान शिकस्त खा गया। मसीह के जी उठने का मतलब ये था कि शैतान के दिन गिने जा चुके थे। शैतान ने कादिर मुत्तलक खुदा की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। अगर वो ये जानता तो कभी भी यीशु को मसलूब होने ना देता। मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु को तकरीबन 500 लोगों ने देखा और उनके शागिर्द खुशी से भर गए थे। खुदावंद ने उन्हें ये सीधी सीधी हिदायत दी कि तुम तमाम दुनिया में जाके हर एक इंसान के सामने इंजील की मनादी करो। अब गौर से देखिए, उन करोड़ों करोड़ लोगों को जो अपने गुनाह में मर गए थे।
यीशु ने इन्हीं लोगों से इतना प्यार किया था कि उन्होंने आसमान को छोड़ा और उन्हें दोज़ख और अदालत के बारे में खबरदार किया। उन्होंने अपना कीमती खून बहाया, यानी खुदा का खून बहाया, उनके गुनाहों को धोने के लिए। वो मरे और मुर्दों में से जी उठे, लेकिन इनमें से कोई भी इन पर ईमान ना लाया। किसी ने भी उन्हें अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल ना किया। उन्होंने जिंदगी की बजाय मौत को चुना। पर यीशु को कादिर मुतलक और मुनसफ आला होने के नाते उन्हें उनकी दूसरी मौत की तरफ भेजना पड़ा। खुदा के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप मर जाएं। यीशु पर ईमान ले आइए और उसे अपना खुदावंद और मुंजी मान लीजिए, इससे पहले कि आपका खात्मा उस खौफनाक जगह पर हो जाए। उनके आसमान पर जाने से पहले यीशु ने एक हैरान कुन वादा किया उनसे जो उन पर ईमान लाते हैं। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत मकान हैं, नहीं तो मैं तुम्हें कहता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जिस हाल में मैं जाता और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता तो फिर आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी रहो। यीशु ने ऐलान किया, आसमान और जमीन का सारा अख्तियार मुझे दिया गया। फिर वो बादलों पर आसमान में उठा लिए गए। अजीज नाजरीन, ये आलम तारीख की सबसे बड़ी कहानी है। यीशु बेशक दुनिया का नूर हैं। अगर आप यीशु से महरूम रह गए तो जन्नत का रास्ता खो दोगे। यीशु ने आप फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई बगैर मेरे वसीले बाप के पास नहीं आ सकता। अगर तू अपनी जबान से खुदावंद यीशु का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू नजात पाएगा। अगरचे शैतान हारा हुआ दुश्मन है, खुदा ने उसे इस दुनिया का इंतजाम संभालने का इख्तियार दे रखा है, जो कि मुकम्मल तौर पर गुनाहआलूद है। शैतान का मकसद लोगों के दिलो दिमाग को इंजील की रोशनी से अंधा करना है। करोड़ों लोग धोखा खा चुके हैं। मजहब शैतान का एक तरीक़ेकार है जिससे वो आपकी रूह को फना करता है, लेकिन यीशु आपकी रूह को बचाने के लिए आए। शैतान के पास बुद्धा को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन बुद्धा तो मर चुका है। वो नजात देने का कादिर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान था। कदीम बुत परस्त मजहब इस तारत को आसमान की मालिका के तौर पर पूछते थे। आज करोड़ों रोमन कैथोलिक लाइल्मी में इस इस्तारत को कुंवारी मरियम के तौर पर पूछते हैं। खुद खुदा अपने मुकद्दस कलाम में यह हुक्म देता है, लानत उस शख्स पर जो अपने हाथों की कारीगरी से खोद के या ढाल के बुत बनाए। तू उनके आगे अपने सर को मत झुका और न उनकी इबादत कर, क्योंकि खुदा की नजर में ये कुफ्र है। शैतान की कारीगरी में एक शिकाहकार इस्लाम है। तवारीख साबित करती है कि अल्लाह मशरिकी मुमालिक में चांद देवता के सिवा कुछ भी नहीं था। मोहम्मद पर जहन्नम का फतवा जारी हुआ था जब उसने यीशु मसीह को अपने मुंजी के तौर पर ठुकरा दिया। शैतान ने दुनिया में लाखों झूठे खुदाओं और देवताओं को इबादत के लिए तैयार किया है,
اپنے جسمانی خیالات کی وجہ سے انسان نے حسرات، چٹانوں، دریاؤں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے لے کر شیطان تک کی پوجا کی ہے۔ یشوع کے پیروکار بننے کے لیے آپ کو اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو ترک کر کے صرف یشوع پر ایمان لانا ہے۔ آگ کی جھیل ان سب کے لیے ہوگی جو یشوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے لیے تو بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن آپ کے بارے میں کیا؟ اگر آپ یشوع کو قبول کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کی تمام زندگی کو تبدیل کر دے گا اور آپ کو ایک نیا دل عطا کرے گا۔ ویسے آپ کی ساری پریشانیاں تو جائیں گی نہیں، لیکن آپ کا بوجھ وہ اٹھا لے گا اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ لیکن سب سے بہترین سما تب آئے گا جب بعد مرنے کے آپ اپنے حیرت انگیز نجات دہندہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے کہے گا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ جلتی آگ سے بچ سکیں۔ اگر آپ یشوع کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہو تو اسی سے دریافت کریں۔ ان الفاظ کو دل سے دہرائیے، خداوند، میں جانتا ہوں میں گناہگار ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ مسیح میرے لیے مرے اور مردوں میں سے جی اٹھے۔ یشوع، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہ سے منہ موڑنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی میرے دل میں تشریف لائیے۔ میں اپنی نجات کے لیے صرف آپ پر یقین کرتا ہوں۔ ابدی زندگی کے یہ الفاظ پا لینے اور سننے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یشوع کے نام میں، آمین۔